Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Diversity and Discrimination, which is the second chapter in civics. And under this chapter, in the previous class, we have discussed about the inequality. How there are some groups in our society who are poor, and because of their poverty they are ill treated in the public places. But what we find that there are some poor people who are whose culture, or we can say language, traditions are considered inferior by the society also. So these poor people whose culture, whose religion, we can say, or traditions are considered as inferior, they face double discrimination. They are ill treated not only because of being poor, but they are also ill treated because their culture is not valued, or their religion is not valued, their language is not valued. So this is the case with the tribals in our country. The tribals who face both kind of discrimination because of being poor, and discrimination because their culture is not regarded as valuable. In the similar way, there are some religious groups also who are treated in an ill manner. And if people belonging to these religious groups are poor, then their problem becomes more complicated, we can say, है ना, क्योंकि उनको दोनों प्रॉब्लम, एक तो गरीबी, पुअर होने के कारण उनको ये सब कुछ इल ट्रीटमेंट होता है, और दूसरे उनके रिलीजन को या उनके कल्चर को वैल्यूएबल नहीं माना जाता, इस कारण भी उन पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो इसको हम कहेंगे कि उनको दोनों तरफ से दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. दे आर एक्सपीरियंसिंग बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना. तो इसी तरह का एक हम लोग अभी एक स्टोरी पढ़ेंगे. दैट स्टोरी इज अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना. डॉक्टर अम्बेडकर इज considered as father of the Indian Constitution, and he was one of the greatest political leaders of our country, but he was a Dalit, and because of being Dalit he experienced ill treatment in the society. So we are going to discuss this ill treatment which was experienced by Ambedkar, Dr. Ambedkar, when he was 9 years old. And this is the story of the year 1901. But before starting that story of Dr. Ambedkar, you must understand what do we mean by Dalit. अगर हम दलित कह रहे हैं तो इससे हम क्या मीन करते हैं? What do we mean by this? So as I have discussed earlier also, that in our society Varna system was prevailing. Before independence, our society was completely regulated by Varna system, and in this Varna system there were 4 Varnas, है ना. In this Varna system there were 4 Varnas, the first Varna was Brahmin, the second was Kshatriya, third was Vaishyas, and fourth is Shudras. So these are the 4 Varna, 4 groups of people which was present in the society. And the society has assigned particular work to each Varna.
हर वर्ण का एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो सोसाइटी ने असाइन किया था। जैसे जो ब्राह्मण्स होंगे, दे, यू हैव रेड अबाउट दिस इन हिस्ट्री ऑल्सो, है ना, हमने हिस्ट्री में भी इसको डिस्कस किया है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपके सोशल साइंस की स्टडी में ये बार बार ये चीज़ें आएंगी। तो हमने हिस्ट्री में इसको डिस्कस कर चुका है। आई एम जस्ट रिपीटिंग यू कि ब्राह्मण्स वो हैं जो कि वर्शिप का काम करते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं जो पूजा करते हैं। दीज ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड टू बी अ लिंक बिटवीन पीपल एंड गॉड, है ना। सिर्फ ब्राह्मण्स ही थे जो पूजा करवाते थे उस समय। और इसके बाद क्षत्रियस होते हैं। जो क्षत्रिय जो हैं वो उनका काम है रूल करना। रूलर्स जो होते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे। देन वैश्यस होते हैं। वैश्य वो होते हैं जो कि ट्रेडर्स, है ना, ट्रेडर्स वर कॉल्ड वैश्य। और शूद्रस जो हैं इनको सबसे नीचे रखा गया है ना। तो ये शूद्रस जो है दे वर वेरी मच कंसर्न विथ cleaning activities, washing activities like cutting of hair, picking garbage, all these functions of we can say cleanliness was assigned to Sudras. ठीक है। तो ये जो हर वर्णा का एक पर्टिकुलर फंक्शंस था, है ना। और इसमें कुछ और बातें हैं जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना। ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी होगी। ये जो वर्णा सिस्टम हम देख रहे हैं दैट वाज हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब लैडर लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें कि इस लैडर में सबसे पहला जो स्थान है, जो सबसे पहला सबसे ऊपर के लैडर पे जो है वो ब्राह्मण्स हैं। उसके नीचे वाली जो सीढ़ी है वो क्षत्रियस है, ठीक है। और क्षत्रियस के नीचे कौन है? क्षत्रियस के नीचे वैश्य है, और वैश्य के नीचे सबसे नीचे वाले पोजीशन पे शूद्रस है। ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। शूद्रस सबसे नीचे, उनके नीचे वैश्य, उनके ऊपर वैश्यास, वैश्यास के ऊपर क्षत्रियास, और इनके ऊपर ब्राह्मण्स, ठीक है। तो ये जो वर्णा सिस्टम था ये कहाँ से बना, किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया। इट्स नॉट समथिंग विच इज डन बाय गॉड। हालांकि उस समय दिखाया यही जाता था, लोगों को बताया यही जाता था ये भगवान ने इस तरह का स्ट्रक्चर किया, बट एक्चुअली इट वाज डन बाय दिस अपर कास्ट, जो अपने आप को जिन्होंने सबसे ऊपर के पोजीशन पे रखा था, यानी कि ब्राह्मण्स, इन्होंने ही इसको क्रिएट किया था इस वर्णा सिस्टम को। तो ये सबसे ऊपर ब्राह्मण्स थे, बीच में क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्रास थे। तो ये कभी भी इनमें इनको इक्वल नहीं माना जाता था, ठीक है। इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि कौन किस वर्ण में होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय बर्थ ओनली। अदर देन बर्थ नथिंग वाज कंसिडर्ड। अगर कोई बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो अगर शूद्रा फैमिली में उसका बर्थ हुआ है, तो ही विल हैव टू डू ओनली दैट वर्क विच इज कंसिडर्ड टू बी डन बाय द शूद्रास। उसको वही काम करना होगा, क्लीनिंग का ही काम करना होगा, वो पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम था कि बर्थ से सबका डिसाइड होता था। और तीसरी चीज जो यहाँ पर हम देखते हैं वो इस वर्णा सिस्टम के बारे में है कि इसके अंदर, इसी वर्णा सिस्टम में जो शूद्रास हैं उनकी कंडीशन सबसे खराब थी, और उसमें अनटचेबिलिटी की बात है ना। तो जो हम कह सकते हैं कि वर्णा सिस्टम के अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो यही है कि 4 ग्रुप्स में सोसाइटी बटी हुई थी। हर ग्रुप का फंक्शन असाइन किया हुआ था, किसको क्या करना है और कौन किस ग्रुप में होगा, किस वर्णा में होगा। वर्णा वाज जस्ट लाइक अ ग्रुप, है ना। कौन किस ग्रुप में होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द बर्थ ओनली। और ये हायरार्किकल था, इक्वल नहीं माना जाता था,
और इसी वर्णा सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है एक वर्ड जिसको मैंने अभी कहा, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी से क्या हम मीन करते हैं? अनटचेबिलिटी का ये मीन होता है कि जो शूद्रास जो थे उनको ये माना जाता था कि दे आर अनटचेबल, दे शुड नॉट बी टच्ड बाय द रिमेनिंग 3 वर्णास। ये जो 3 वर्णास हैं, ये तीनों वर्ण इनसे टच नहीं होने चाहिए। अगर इन तीनों वर्ण के कोई लोग इन शूद्रास से टच हो जाते हैं तो वो भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था। और इसलिए इनके साथ बहुत ही खराब बिहेवियर किया जाता था। किसी भी पब्लिक प्लेस में इनको जाने का परमिशन नहीं था। द पीपल बिलोंगिंग टू शूद्रास और शूद्रास were not allowed to go to any public place. They were not allowed to take water from that well, which from that well from where upper caste people were taking water. ठीक है, जिस कुएं से या जिस घाट पे भी कह सकते हैं अपर कास्ट के लोग जिस जहाँ से भी पानी को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर उस पानी को शूद्रास नहीं यूज़ कर सकते थे। तो ये सारे बहुत ही हमारे सोसाइटी के बड़े ऑप्रेसिव सिस्टम्स थे जो कि प्रिवेल करता था। ठीक है, और यही जो शूद्रास हैं इनको ही अगर हम समझें तो महात्मा गांधी ने इन्हीं शूद्रास को एक नया नाम दिया था, हरिजन। हरिजन मतलब भगवान के लोग हैं, भगवान ने इन्हें बनाया है, हमें इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस बात को लेकर के महात्मा गांधी ने इनका नाम हरिजन रखा था। बट आज के समय में अगर हम देखें तो ये जो शूद्रास हैं ये अपने आप को दलित कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे प्रेफर टू बी कॉल्ड एज दलित। ठीक है, तो यही शूद्रास जो है उन्हीं को हरिजन भी कहा जाता है, उन्हीं को दलित भी कहा जाता है। हरिजन नाम महात्मा गांधी ने दिया, दलित नाम इस कम्युनिटी के लोगों ने खुद अपने आप को दिया है। एंड व्हाट इज द मीनिंग? ये दलित जो वर्ड है दैट इज अ हिंदी वर्ड, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित? दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है डाउन ट्रोडन। अब डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है? डाउन ट्रोडन का मतलब ये होता है जिसको कि पांव से कुचल दिया गया, है ना। तो ये जो दलित्स हैं इनके साथ जो सोसाइटी के अंदर बिहेवियर हो रहा था कि उनको किसी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है, उनको अगर गांव में एंट्री नहीं करनी है, अगर एंट्री करनी है तो कुछ ऐसे बजाते हुए एंटर करें ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि एक दलित आ रहा है और सभी उससे दूर हो जाए। तो ये क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सप्रेसिंग द पीपल बिलोंगिंग टू दैट वर्ण। उस वर्ण से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, पूरी तरह से कुचला जा रहा है, जिसको हम कहेंगे पाँव से कुचल देना। दैट इज वाई दे प्रेफर टू बी कॉल्ड एज दलित। ये नाम उन्होंने खुद अपनी कम्युनिटी को दिया है क्योंकि उनको बाकी के जो 3 कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने उनको दबाया है, कुचला है, जिसके कारण उनका जो ग्रोथ है वो रुक गया है। दे आर नॉट एबल टू develop their personality. If they are not allowed to enter the school, then how can you think that they will be able to develop their personality, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती थी। तो यही जो है ये दलित कहलाते हैं। और यही दलित जो है इनको अब जो गवर्नमेंट में आप लोग शेड्यूल कास्ट का नाम सुनते होंगे, ये यही दलित ही जो है वो SC कहलाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वो कास्ट के लोग हैं जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बनाई गई है और इस जिन लोगों का नाम इस शेड्यूल में है, जिन कास्ट का नाम इस शेड्यूल में है, उनको गवर्नमेंट
प्रेफरेंस देती है, जैसे जॉब देने में, स्कूल्स में एडमिशन में गवर्नमेंट उनको प्रेफरेंस देती है, इसलिए क्योंकि पीछे जो पहले का समय था उसमें उनके साथ बहुत सारी गलत इल ट्रीटमेंट हुआ है। तो उस इल ट्रीटमेंट के कारण उनका जो ग्रोथ, उनका जो डेवलपमेंट रुक गया था, तो उनको फिर से रास्ते पर लाने के लिए गवर्नमेंट उनको शेड्यूल कास्ट के तौर पे उनको रखी है और उनको बहुत सारे प्रेफरेंसेस देती है। सो दिस इज अबाउट कि हमने समझ लिया कि दलित क्या होते हैं, अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस था हमारी सोसाइटी में कि उनसे कोई भी टच नहीं होना चाहिए, किसी भी पब्लिक प्लेस पर उनको जाने का परमिशन नहीं होता। ओके, एंड नाउ वी कम टू दैट स्टोरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि स्टोरी है 1901 की, और जब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 years ओल्ड थे। ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी पढ़ रहे हैं। एक इंसिडेंट है उनकी लाइफ का। ठीक है, कौन सा ईयर है? ईयर है 1901। क्या होता है? Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. So, what is the story? The story is about some children are there, okay, on the platform, and these children are alone. One of the children is Dr. Bhimrao Ambedkar, and his cousin brothers and sisters are with him. Okay, and you are knowing the age of Dr. Ambedkar was 9 years at that time. तो ये जो कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं ये प्लेटफॉर्म पे हैं, अब अकेले खड़े हैं काफ़ी देर से, है ना, लेकिन कुछ भी मतलब इट सीम्ड दैट दे वर वेटिंग फॉर समवन, है ना, ऐसा लगा देख करके कि वो किसी का वेट कर रहे हैं। तो जब उनको बहुत देर तक वो खड़े रहे तो क्या हुआ, स्टेशन मास्टर उनके पास आते हैं पूछताछ के लिए कि मतलब क्यों आप लोग खड़े हैं, है ना, और सबसे पहली चीज़ तो आपके पास टिकट है या नहीं। तो उन्होंने, बच्चों ने दिखा दिया कि टिकट तो थी उनके पास, है ना। अब वो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे, आप लोग बच्चे यहाँ पर क्यों, क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्चों ने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। कहाँ जाना है? कोरेगांव। है ना। अब कोरेगांव जाना है और अब वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि उनके फादर या तो आए या फादर किसी सर्वेंट को भेजे ताकि वो हमें लेकर के कोरेगांव पहुँचा सके, है ना। लेकिन कोई आया ही नहीं, न तो उनके फादर आए और न ही कोई उन्होंने सर्वेंट को भेजा। अब हम लोग, बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब वो कैसे कोरेगांव जाएंगे उनकी समझ में नहीं आ रहा है ना, कैसे, हाउ टू रीच कोरेगांव, दे वर नॉट नोइंग। तो वो बहुत परेशान है बच्चे। ठीक है, ये स्टोरी है। अब देखिए क्या होता है। तो ये जो बच्चे थे वो बहुत ही अच्छे से कपड़े वगैरह जो है बढ़िया से पहने हुए थे और बातचीत भी अच्छे से कर रहे थे, जिसको कि
देख करके, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके कपड़े पहनने हुए देख करके कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये जो बच्चे हैं वो दलित्स के बच्चे होंगे, वो बच्चे अनटचेबल्स के बच्चे होंगे, है ना। तो जो वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर थे वो भी बातचीत किए उन बच्चों से। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टेशन मास्टर थे उनको इस बात का काफ़ी वो श्योर थे कि ये जो बच्चे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चे जो हैं वो अपर कास्ट के ही होंगे, वो यही सोच रहे थे, है ना। तो उनको यही लग रहा था कि ये बच्चे ब्राह्मण के बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार के, ब्राह्मण फैमिली के बच्चे हैं। और उनको बहुत बुरा भी लग रहा था स्टेशन मास्टर को कि बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके फादर का सर्वेंट कोई भी नहीं आया उनको लेने के लिए, ठीक है। तो आई एम जस्ट रीडिंग द स्टोरी, जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था वहाँ से आई एम रीडिंग इट। ओके, वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन, फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रेन ऑफ द अनटचेबल्स। हमारे कपड़ों को देख के या हमारे बातचीत करने के तरीके से कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि हम किसी अनटचेबल फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रेन and was extremely touched at the plight in which he found us, है ना। तो स्टेशन मास्टर was also of the opinion that these children belong to Brahmin family, okay, or he was very much disturbed by watching the trouble of the children, okay. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. It is very usual. पहले के समय में तो और भी ज़्यादा ये चीज़ होती थी। जब भी हम किसी से बात करते थे पहले के समय के, वी आर टॉकिंग अबाउट 1901, है ना। तो उस समय तो ये बहुत ही यूजुअल था कि किसी से भी बात करने पर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है रिगार्डिंग कास्ट, कि वो किस कास्ट के हैं। कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था हमारी सोसाइटी में, आज भी है बट आज कम हो गया, कंपैरेटिवली आज बहुत कम हो गया है। अगर हम पहले के कंडीशन को देखें तो आज बहुत कम हो गया। तो उस समय जो कंडीशन था वो यही था कि कोई भी जब बात करना स्टार्ट करता है तो पहला काम यही होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है उनके कास्ट के बारे में। तो स्टेशन मास्टर ने भी बच्चों से पूछ लिया उनके कास्ट के बारे में। ओके, एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर, कौन है हम लोग, क्या कास्ट है हमारा। ओके, so without a moment's thought I blurted out that we were Mahars, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या कास्ट है मेरा। उन्होंने तुरंत बता दिया कि हम लोग क्या हैं, हम लोग महार हैं, ठीक है। वी वर महार्स। अब महार जो होते हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी है, महाराष्ट्र में थी उस समय, जिसको कि अनटचेबल माना जाता है। महार्स वेर कंसिडर्ड एज अनटचेबल इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस समय जो रीज़न, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, बॉम्बे उसके आसपास की जो जगह है वो दैट वर नोन एज, जिसको हम आज महाराष्ट्र कहते हैं, दैट वाज नोन एज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो वहाँ पर जो महार कम्युनिटी के लोगों को अनटचेबल कंसिडर किया जाता। तो जैसे ही इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वी आर महार्स, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दैट द स्टेशन मास्टर वाज स्टन्ड। स्टन्ड मीन्स बिल्कुल ही आश्चर्यचकित, एकदम उनके चेहरे का जिसको कहा जाए कि रंग उड़ गए जब उन्होंने जाना कि ये बच्चे महार कम्युनिटी के हैं। ही वॉज स्टन्ड, हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। अचानक उनके चेहरे का जो चेहरा बदल गया, जो चेहरे के भाव थे, जो एक्सप्रेशंस था, वो पूरी तरह से चेंज हो गया, है ना। और बच्चों ने इस चीज़ को फील किया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये महार है, उनको एक रिपल्सन की फीलिंग आई। रिपल्सन क्या होता है,
रिपल्सन जो होता है वो अट्रैक्शन का अपोजिट होता है। जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ कोई हमें अच्छा लगता है, हम उसको पसंद करते हैं, उससे बातें करते हैं, दैट इज अट्रैक्शन। रिपल्सन का मतलब उससे बिल्कुल दूर हो जाना। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये जो बच्चे हैं वो महार कम्युनिटी के हैं, वो उनमें एक रिपल्सन की फीलिंग आई, वो बिल्कुल पीछे हो गए, है ना। एंड as soon as he heard my reply he went away to his room, है ना, and we stood where we were। वो अपने रूम वापस चले गए। जैसे ही सुने महार कम्युनिटी के, वो अपने फटाक से रूम वापस चले गए और बच्चे वहीं पर पड़े हुए हैं। ठीक है। 15 to 20 minutes elapsed, the sun was almost setting। ओके अब फिर जब स्टेशन मास्टर चले गए इनसे बात करके, इनको जान के कि ये महार कम्युनिटी के हैं, उसके बाद फिर 15 to 20 मिनट्स बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। फादर भी नहीं आए, उनके सर्वेंट भी नहीं आया, कुछ भी, इनको कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। और अब क्या हो रहा था, सनसेट होने वाला था। सनसेट हो जाएगा तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, और फिर अंधेरे में बच्चों के लिए प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी रात होने पर, है ना। अब उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो रही थी कि वो कोरेगांव कैसे पहुंचे। स्टेशन पे तो आ गए, अब यहाँ से उनको कोरेगांव जाना है, अब कैसे पहुंचे। तो अब क्या हुआ कि 15 to 20 minutes elapsed, the sun was almost setting, our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us। तो अब बच्चे और घबरा रहे हैं कि फादर तो नहीं आया, उनका सर्वेंट भी नहीं आया, और एक जो स्टेशन मास्टर थे, जो कुछ उनसे बात कर रहे थे, जिनसे उनको कुछ रे ऑफ होप लग रहा था कि हमारी हेल्प कर देंगे, वो भी अब बाहर चले, हमसे दूर चले गए, है ना। अब वो हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो अब बच्चे बहुत ही परेशान हो रहे थे। वी वर क्वाइट bewildered, है ना, वो बहुत परेशान थे। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। तो वो बहुत खुश थे कि वो कोरेगांव जा रहे हैं, है ना, शुरू में। लेकिन अब उनका जो खुशी थी, वो सारी खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई। अब वो सभी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। फिर आधे घंटे बाद वो स्टेशन मास्टर वापस आए और उनसे पूछे कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करना है, कैसे, क्योंकि स्टेशन मास्टर थे, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो पूछते हैं उनसे कि क्या आप प्रपोज कर रहे हैं, आपका क्या प्रपोजल है, आप लोग कैसे जाना चाहते हैं, क्या करना होगा। तो बच्चों ने कहा कि वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी कुड गो टू कोरेगांव, है ना, एंड इफ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, है ना। उन्होंने कहा कि अगर एक बुलक कार्ट हमें हायर कर लिया जाए, हमें किराए पर मिल जाए, है ना, जैसे हम स्टेशन जब पहुंचते हैं तो बैठते हैं ना ऑटो रिक्शा में, जो दूसरे रिक्शाज होते हैं उनमें हम बैठते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो उस तरह से इन्होंने भी कहा कि अगर कोई बुलक कार्ट हमें रेंट पे मिल जाए, हम उनको हायर कर लेंगे और हम पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे कोरेगांव, वो हमें पहुंचा देगा कोरेगांव। या फिर अगर बहुत दूर नहीं है कोरेगांव तो हम लोग पैदल भी चले जाएंगे, है ना। अब क्या होता है कि देयर वर मेनी बुलक कार्ट्स फ्लाइंग फॉर हायर, बहुत सारे वहाँ पे बुलक कार्ट्स थे। किसी भी स्टेशन पे इस तरह के व्हीकल्स होते हैं ना, क्योंकि जो भी स्टेशन पे आया उसको जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए उसको कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो उस समय में बुलक कार्ट्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था। तो बहुत सारे बुलक कार्ट्स वहाँ पे थे, ठीक है। तो ये जो थे, but what happened that when Dr. Ambedkar replied to the station master that they were Mahars, this news that they were Mahars had gone round among the cartmen, and no one of them were ready to carry them। ठीक है। जो बुलक कार्ट चलाने वाले थे, कार्टमैन थे, उनमें से कोई भी इन बच्चों को अपनी कार्ट में बैठाने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज दे बिलोंग टू महार कम्युनिटीज़। और अगर वो उनके कार्ट में बैठ जाते तो उनका कार्ट क्या हो जाता, पॉल्यूटेड हो जाता, क्योंकि वो
अनटचेबल्स थे, है ना। तो और उनके लिए ये बहुत ही खराब बात होती कि वो एक अनटचेबल पैसेंजर्स को वो ले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा पैसे देंगे, डबल पैसे देंगे, अगर यहाँ से कोरेगांव का फेयर जो है वो 10 रुपीज़ है तो हम 20 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी कोई भी कार्टमैन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। वी वर प्रिपेयर्ड टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। पैसा भी काम नहीं कर रहा है वहाँ पर। जो सोशल स्ट्रक्चर जिस तरह का है उसमें पैसे भी काम नहीं कर पा रहे हैं। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब स्टेशन मास्टर इन बच्चों की तरफ से बात कर रहा था कार्टमैन से। वो चाहते थे कि बच्चे चले जाएं क्योंकि बच्चे मुसीबत में आ जाएंगे, अब रात होने वाली है। लेकिन कोई भी कार्टमैन डबल पैसा लेकर भी तैयार नहीं था। तो इस तरह की सिचुएशन को हमने देखा, किस तरह से एक दलित जो फैमिली को के बच्चे फेस किए। इस स्टोरी को हम, स्टोरी इज ओवर, बट इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।